ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જ્યારે આજે લોકડાઉન પછીનો સન્ડે, એટલે લોકડાઉન પછીનો સન્ડે આઈ થિંક સો આપણા બધા માટે લોકડાઉનના દરેક સન્ડે જ હતા. રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રની એક એવી મેન્ટાલિટી હોય છે કે દુનિયામાં કદાચ કોઈ પણ ડિઝાસ્ટર આવે, એટલે કોઈ પણ આફત આવે, તો ગુજરાતીઓ છે એ દરેક ક્ષણને પોતાની ખુશીથી અને પોતાની ઓલીથી એન્જોય કરતા હોય છે. તો આઈ થિંક સો બધા લોકડાઉન છે ને એ રાજકોટવાસીઓને તો મને ખબર જ છે કે લોકડાઉનને બધાએ પૂરી રીતે એન્જોય 100% કરેલું છે. ખાસ કરીને અમારી જ વાત કરીએ તો અમે જસ્ટ આ 2 મહિના ક્યાં વયા ગયા કંઈ ખબર જ નથી પડી. અને ઈશ્વરનો એવો પાળ માનીએ છીએ કે જ્યારે ઈશ્વરે આજે લોકડાઉનની અંદર આઈ થિંક સો 20-25 વર્ષે એવો ચાન્સ મળેલો હશે કે ફેમિલી સાથે આટલો બધો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવા મળેલો છે. તો એ બાબતે થેન્ક ગોડ, ઈશ્વરને આપણે આભાર માનીએ છીએ. અને ખાસ હું તો ખૂબ જ આભાર માનું છું કે ઈશ્વરે આપને, ભલે કોરોના છે, આજે આ સમય ખરાબ છે, સમય ખરાબ આવી ગયો છે પૂરી દુનિયા ઉપર. કોવિડ-19ની જે વાયરસથી જે મહામારી ફેલાઈ ચૂકી છે. હિરેન રાવલ સર, કેમ છો તમે? ચૌહાણ દીપકભાઈ, કેમ છો તમે? મજામાં છો? મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે લોકો મ્યુઝિશિયન્સ છે, જે લોકો મ્યુઝિકને રિલેટેડ વર્ક કરે છે, એ લોકો માટે થોડો કપરો સમય અત્યારે છે. બિકોઝ દેટ આવતા કદાચ 1 વર્ષ, 1.5 વર્ષ કે 2 વર્ષ, આઈ થિંક સો 1 વર્ષ તો કન્ફર્મ, થોડો ટાઈમ મારાથી વધારે બોલાઈ ગયો છે, 1 વર્ષ તો કન્ફર્મ, 1 વર્ષ સુધી તમામ મ્યુઝિશિયન માટે થોડી ક્ષણો છે એ મુસીબતવાળી છે. શું કામ કે વેડિંગ્સ બધા ઓલમોસ્ટ જે ગેધરિંગ છે બધું જ ગવર્મેન્ટે એના પર બેન્ડ મૂકેલો છે. આવતી આઈ થિંક સો ઓક્ટોબર નવેમ્બર સુધી તો 100%. તો એવા સમયમાં જે મ્યુઝિશિયન્સ છે કે જે લોકો સંપૂર્ણપણે મ્યુઝિક ઉપર જ નિર્ભર છે, એ લોકો માટે થોડી કફરી પરિસ્થિતિ છે અત્યારે. પણ ગોડ ઇઝ ગ્રેટ, ભગવાન બધા માટે સારું જ ઈચ્છે છે અને સારું જ કરે છે. આ દેશ અને દુનિયા ઉપર જે આફત આવી છે, બધા સાથે મળી અને એવી પ્રાર્થના કરીએ. ઋષિભાઈ, મજામાં છો? કેમ છો તમે? બધા એવી પ્રાર્થના કરીએ કે કોવિડ-19 કોરોના વાયરસ પરની જે આ મહામારી છે આખી દુનિયામાં ફેલાઈ ચૂકી છે, એ ભગવાન એને દૂર કરે, ઈશ્વર એને દૂર કરે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર છે, ધીરજભાઈ મકવાણા મજામાં? સૌરાષ્ટ્ર છે, સૌરાષ્ટ્ર તો સંતોની નગરી કહેવાય છે. અને સંતોની નગરીની અંદર જલારામ બાપા છે, પૂજ્ય રણછોડદાસજી મહારાજ છે આપણા. તો ચેતનભાઈ, મજામાં છો? આજે 100% એવું કહી શકાય કે જ્યાં સુધી સંતો બેઠા છે ત્યાં સુધી કંઈ જ નહીં થાય. અને રહી વાત મ્યુઝિકની, તો મ્યુઝિકને રિલેટેડ વાત કરીએ થોડી. બેકસ્ટેજમાં જે વર્ક થતું હોય છે, એટલે જે મ્યુઝિશિયન્સ છે, મ્યુઝિશિયન્સની દુનિયા કંઈ જુદી હોય છે. પબ્લિક ઓરિયન્ટેડ જે ફિલ્ડ છે આખું, પબ્લિક હંમેશા એન્કર્સ છે, સિંગર્સ છે, એ લોકોને જ ઓળખતી હોય છે. પણ એક જે પૂરું વર્ક હોય છે એમાં જેને કહેવાય કે મ્યુઝિશિયનનો રોલ છે, એ એટલો મોટો રોલ હોય છે કે જે રોલ છે એ કદાચ દુનિયાને નથી ખબર હોતી કે ભાઈ આ રોલ છે એ મ્યુઝિશિયનનો કેવો હોય છે. તો એ મ્યુઝિશિયન વિશેની વાત હું તમને જસ્ટ એવું જણાવું કે પૂરા ભારત દેશમાં જેમનું એક એવું મોટું નામ છે અને એક પર્ટિક્યુલર રિધમ મેસ્ટ્રો જેને ગણવામાં આવે છે, આમ તો પૂરું આખું ઘરાનું જ છે શંકર્સનું, એટલે શંકર્સ બ્રધર્સનું, કે જે લોકોનું ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી તમે લાઈવ પરફોર્મ જો કે સારેગામાપા છે, ઇન્ડિયન આઇડોલ્સ છે, જે બધા બેન્ડમાં જે બહુ જ મોખરે હોય છે, જે એકદમ હાઇલાઇટ જેનું વર્ક છે આખું,
સમીરભાઈ મજામાં છો? જય હાટકેશ. યસ, હર હર મહાદેવ. સમીરભાઈ જે મોખરે હોય છે અને જેનું એવું મોટું નામ છે એવા આજે મારા ખાસ પરમ સ્નેહી મિત્ર અને જેને વડીલ કહી શકાય અનુપ દાદા એટલે અનુપ શંકર આપની સાથે હું લઈ આવું છું આપની સાથે વાતચીત કરવા માટે. તો અનુપ દાદા એક એટલે જેને લગભગ આઈ થિંક સો કોઈ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર બાકી નહીં હોય કે જેની સાથે વર્ક નથી કરતા અનુપ દાદા. છેલ્લા ઘણા જ બધા વર્ષોથી તમે જુઓ સારેગામાપા છે, ઇન્ડિયન આઇડલ્સ છે, એવી ઘણી બધી જે મ્યુઝિક્સની કોમ્પિટિશન્સની જે આવે છે સિરિયલ્સ, એમાં અનુપ દાદા એઝ એ મ્યુઝિશિયન સૌથી આગળ હોય છે, મોખરે હોય છે. અનુપ દાદા બસ આપણી વચ્ચે થોડીક ક્ષણોમાં જ હાજર થવા જઈ રહ્યા છે. જિગ્નેશભાઈ આચાર્ય, હિરેનભાઈ રાવલ, મ્યુઝિક ઇઝ ગોડ. યસ હિરેનભાઈ, મ્યુઝિક છે એ ગોડ જ છે. મ્યુઝિક એટલે એક એવી થેરાપી છે કે આજે માણસ છે એ કોઈ પણ મુસીબતમાં હોય, કોઈ પણ ઓલું હોય તો મ્યુઝિક છે એને હંમેશા જો મ્યુઝિકને માનતા હોય તો એ મ્યુઝિક છે એમને બહાર લઈ આવે છે. મારી સાથે બીજું કોણ લાઈવ છે અત્યારે? જિગ્નેશભાઈ આચાર્ય, મહાદેવ. યસ, જીતુભાઈ ભટ્ટ કેમ છે? અચ્છા, મારો વોઇસ ક્લિયર આવે છે? જો મને પ્લીઝ. દેવભાઈ, યસ દેવભાઈ, મહાદેવ હર કેમ છો? મજામાં? મારો ફેસ એકદમ ક્લિયર. જનરલી સિંગર્સને લાઈવ થવાની આદત હોય છે. અમે તો ભાઈ મ્યુઝિશિયન છીએ, બેક સ્ટેજના આર્ટિસ્ટ છીએ, તો અમને આ રીતે ફ્રન્ટમાં આવીને ક્યારેય લાઈવ થતા નથી હોતા. તો પ્લીઝ મને સજેસ્ટ કરશો આપ, કાંઈ ઇશ્યુઝ હોય, કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય, ફેસ ન દેખાતો હોય, વોઇસ ક્લિયર ના આવતો હોય તો પ્લીઝ મને જણાવશો. તમે કહેશો તો જ મને ખબર પડશે. કાદિરભાઈ કેમ છો? મજામાં કાદિરભાઈ? યસ, અત્યારે ઘણા બધા મ્યુઝિશિયન્સ છે કે જે મેં મારી પોસ્ટ ફેસબુક ઉપર મૂકેલી હતી અને વાયરલ કરેલી હતી વોટ્સઅપ અને ફેસબુક દ્વારા. તો અમારા ઘણા બધા જ મ્યુઝિશિયન મિત્રો છે કે જે લોકો અનુપ દાદાની વેઇટ કરી રહ્યા છે. બસ જસ્ટ 2-5 મિનિટમાં જ અનુપ દાદા છે એ ઓનલાઈન થાય છે. અનંતભાઈ ચૌહાણ કેમ છો? મજામાં? ઘણા બધા સિંગર્સ છે એ બી અત્યારે લાઈવ મતલબ મને જોઈ રહ્યા છે. મસ્ત ભાઈ, યસ, ઓકે. મોન્ટુભાઈ બરાબર આવે છે, ક્લિયર આવે છે એકદમ? યસ, કાદિરભાઈ મજામાં? મ્યુઝિકની દુનિયામાં એક બહુ સારી વાત કહેવાય તો જો કાદિરભાઈ અત્યારે લાઈવ છે અને કાદિરભાઈ લખે છે મહાદેવ હર. કાદિરભાઈ બાયકાસ મોમેડિયન છે. તો આજે એકદમ જેને કહેવાય કે રમઝાન મહિનો બસ હમણાં જ આઈ થિંક સો ઈદ ક્યારે છે કાદિરભાઈ? રમઝાન મહિનો છે એ ચાલતો હતો અને અમારા આર્ટિસ્ટોના ફિલ્ડની અંદર એ એક એવો ભાઈચારો છે કે બધા જ સાથે મળીને કામ કરે છે. કોઈ નાત જાતનો કોઈ ભેદભાવ નથી. ચેતનભાઈ પાઠક, ક્રિસ્ટલ ક્લિયર વોઇસ. યસ, થેન્ક યુ ચેતનભાઈ, મજામાં છો? એટલે ખાસ હા, જે હું વાત કરી રહ્યો હતો મ્યુઝિશિયન્સની, કે મ્યુઝિશિયન્સની એક દુનિયા હોય છે અને મ્યુઝિશિયન્સની એક એવી દુનિયા હોય છે કે જે બેક સ્ટેજ ઓલવેઝ કામ કરતા હોય છે, જેને પોતાના કામથી જ એટલો લગાવ હોય છે કે જેને ક્યારેય એવું નથી થતું કે ભાઈ ચાલો હું ફ્રન્ટમાં આવું, હું દુનિયાની વચ્ચે કાંઈ મારું એવું નામ કરું કે બસ દે આર ઓલવેઝ ઇન એની મોજમાં જ હોય છે. સંજીવ, યસ સંજીવભાઈ ઉપાધ્યાય મજામાં? કેમ છો સંજીવભાઈ? રાજેશભાઈ ચૌહાણ, યસ રાજેશભાઈ કેમ છો? રાજેશભાઈ મારા ખાસ પરમ મિત્ર છે, રાજકોટમાં રહેતા હતા અને સાઉન્ડ એન્જિનિયરિંગ પોતે સાઉન્ડની દુનિયામાં બહુ જ મોટું નામ છે. અત્યારે ન્યૂ જર્સી પાસે આઈ થિંક સો હું સિટીનું નામ ભૂલી ગયો, પારસીપેની. યસ એક્ઝેક્ટલી, પારસીપેનીમાં રાજેશભાઈ રહે છે અને ખૂબ જ સારા એવા મારા મિત્ર છે, અંગત ફ્રેન્ડ છે. રાજેશભાઈ યુએસએમાં કેવા હાલ છે અત્યારે? કોરોનાનો થોડોક કહેર છે, તકલીફ છે. મયુરભાઈ બુદ્ધદેવ કેમ છે? મયુરભાઈ મજામાં? તો
હા, જસ્ટ હું એ વાત કરતો હતો કે ઘણા બધા સિંગર્સ એવા છે કે જે પહેલા મ્યુઝિશિયન હતા એમાંથી સિંગર થયા છે. એમાં એવાના ખાસ અમારા પરમ સ્નેહી મિત્ર મયુરભાઈ બુદ્ધદેવ જ્યારે લાઈવ છે અને લાઈવ મતલબ કે વોચ કરી રહ્યા છે, જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે મયુરભાઈ ખૂબ સારા રિધમિસ્ટ હતા અને છે એમ કહી શકાય. અને અત્યારે ખૂબ સારું મોટું નામ છે કે જેને સૌરાષ્ટ્રનો સિંહ ગણવામાં આવે છે. યસ યસ, ડન છે મયુરભાઈ. અને ખૂબ સારી એવી નામના છે. એટલે જે કોઈ મતલબ મ્યુઝિશિયન હોય છે, ખાસ કરીને જે રિધમ પ્લે કરતું હોય કે કીબોર્ડ પ્લે કરતું હોય, જે મ્યુઝિશિયન છે એ ઓલવેઝ સિંગિંગ સારું જ કરતા હોય છે. અને કોશિશ ઘણા બધા પ્લેબેક સિંગર્સમાં યસ કેયુરભાઈ મજામાં, કેયુરભાઈ બુદ્ધદેવ મજામાં છો? જે મ્યુઝિશિયનમાંથી સિંગર્સ બનેલા એવા ઘણા બધા જ નામ છે. ગુલામ અલી ખાન સાહેબ છે કે જે ખૂબ જ સારા તબલા વગાડે છે અને વગાડતા હતા એમ ના કહી શકાય કે વગાડે છે. એમાંથી આનંદભાઈ સોની, જય હો સોની સમાજ. થેન્ક યુ આનંદભાઈ. આનંદભાઈએ ખૂબ સારી કોમેન્ટ કરી છે કે ધર્મેશભાઈ હવે એન્કરિંગ ચાલુ કરી દો. આનંદભાઈ, જો છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી એન્કરિંગ કરું જ છું. થેન્ક યુ ફોર નાઇસ કોમ્પ્લિમેન્ટ. યસ, તો ઘણા બધા મ્યુઝિશિયન એવા છે કે જે મ્યુઝિશિયન છે એ સિંગર્સ ઓલરેડી બની ગયા છે. અને જે મ્યુઝિશિયન છે એ જેને કહેવાય કે જે સિંગર થાય છે તો એ 100% હટકે જ હોય છે. જેમ કે અમારું રાજકોટનું એક એવું મોટું ઘરેણું છે ને કહી શકાય કે ઓસમાનભાઈ. યસ અનુપભાઈ યસ કમિંગ. બસ આપ 2 જ મિનિટ હોલ્ડ કરશો. અનુપભાઈ આપણી વચ્ચે यस दादा, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो? बस बस अनूपदा, कैसे हो आप? ठीक हो? एकदम अच्छा हूँ. सबको गुड इवनिंग. सर जी आपको, यस, सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग बोल रहे हैं अनूपदा. और आपको देख के मतलब जो हमारे यहाँ के दोस्त है सभी, वो इतने बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे. जो फेसबुक पे हमारी पोस्ट मतलब हमने रखी थी, तो मुझे काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स के कॉल आए कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक म्यूजिशियन हो के एक म्यूजिशियन को लाइव कर रहे हैं आप. क्या बात है, बहुत बड़ी बात है. तो सर जी काफी सारे यहाँ सौराष्ट्र गुजरात में जो मतलब म्यूजिशियंस हमारे भाई है, हाँ, वो सभी आपको गुरु मानते हैं. और बेसिकली मैं तो बोलूं कि शायद बहुत साल पुरानी बात है जो मतलब सारेगामा आता था, उसके बाद सारेगामा पा आया, वो सभी सेशंस मैंने देखी है. और मतलब जो पूरा बैंड है, वो बैंड इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैंड है सर आप लोग का कि रात को जो एपिसोड होते थे वो डाउनलोड करके मैं पूरा हैंड्स फ्री में सुनता था. तो बैक स्टेज की बात करें तो काफी सारे, हम तो आर्टिस्ट है तो हमको पता चलता है कि बैक स्टेज की बात करें तो बैक स्टेज में ये होता है कि साउंड की साउंड का जो पार्ट आता है वो पब्लिक को नहीं पता होता है. साउंड इंजीनियरिंग कि पूरा बैंड है उसका साउंड कितना बढ़िया आ रहा है, जो पूरे हम वो सुने तो ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डेड आता है. मेरा फेस ठीक आ रहा है सर जी आपको? हाँ, परफेक्ट है. अच्छा, अगर मैं आपका इंट्रो छोटा सा दे दूं सभी दोस्तों को. हमारे साथ आज जो उपस्थित है अनूप शंकर जी, जिसको हम प्यार से अनूपदा बोलते हैं, वो आई थिंक सो सर जी 35-38 ईयर्स हुए आपको इंडस्ट्री में बजाते हुए? हाँ, 35 हो गए होंगे क्योंकि मैं
1987 से रेगुलर रिकॉर्डिंग्स और शो फील्ड में हूँ। हम्म, 87 से ऑलमोस्ट मैं मेन स्ट्रीम में रिकॉर्डिंग्स बजा रहा हूँ। और लाइव शोज तो मैं तो उसके पहले से बजाता था। और टेलीविजन इंडस्ट्री अच्छा में मुझे कम से कम 27 ईयर्स हो गए। जब पहले जी सर। अंताक्षरी आता था, तब से मैं हाँ जी, अंताक्षरी जी। वो हाँ एंकर एक पल्लवी जोशी जी होस्टिंग में थे, और हाँ। साथ दुर्गा में आई थिंक सो सबसे पहली पार्टनर थी दुर्गा जसराज जी। दुर्गा जसराज जी। सबसे पहले हाँ जी, दुर्गा दुर्गा जसराज जसराज जी जी। थी पहले। हाँ, हाँ 93 जी, की हाँ बात जी। कर रहा हूँ मैं। और हाँ जी, 93 की बात तो हाँ बहुत बहुत साल हो गए, मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम सर काफी आप साल हो गए। पेड ऑक्टोपेड प्ले कर रहे थे। हाँ, सबसे पहले मैं हाँ उसी तभी से मैं ऑक्टोपैड प्ले कर रहा हूँ। और अभी भी हम्म, ऑक्टोपैड प्ले करता हूँ, बाकी परफॉर्मेंस भी प्ले करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने डिफरेंट डिफरेंट ओके परकशंस प्ले किए हैं अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ। लेकिन टेलीविजन पे ओके मैं ऑक्टोपैड ही बजाता हूँ। ओके सर। मैं आपको मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि सर इतने साल इंडस्ट्री में हुए एज ए म्यूजिशियन, तो आपने हाँ, कई सारे मतलब गाने गाने हैं जिसमें आपने बजाया है रिकॉर्डिंग्स में। तो सर आप जो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जो दोस्त है उसको थोड़ा ये शेयर कीजिए कि सपोज के ये गाना जो रिकॉर्ड हो रहा था उस टाइम के मतलब जो म्यूजिक अरेंजर थे उसने ऐसा पैटर्न बनाया था, ये है वो है, तो वो आर्टिस्ट को उसमें से बहुत सीखने मिलता है सर। तो थोड़ी बात ये आप शेयर करेंगे प्लीज। देखो, पहले लाइव रिकॉर्डिंग्स में अपने अपने सेक्शन के अरेंजर्स होते थे। हमारे रिदम सेक्शन में भी अरेंजर होते थे ज्यादातर। जैसे नितिन भाई, मेरे बड़े भाई, वो जतिन ललित हाँ और जी, नितिन दा। अनु मलिक। हाँ, वो अरेंजर होते थे, रिदम अरेंजर। और दुबे जी, आनंद मिलिन के पास दुबे जी थे। वो लोग हमको पैटर्न ओके समझाते थे कि ऐसा ऐसा बजाना है। तो फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने टेक्निक से, अपने साउंड से हम लोग बजाते थे। ओके। और हाँ, सर जो जो मोनो रिकॉर्डिंग्स होते थे, जब मतलब उसमें एक बार रिटेक हुआ तो फिर पूरा गाना वापस से प्ले करना पड़ता था, तो उस टाइम पे कैसा माहौल था? बिल्कुल एकदम अलर्ट रहना पड़ता था। अपने अपनी चीजें डिवाइड करके दी हुई होती थी। वो अपनी चीजें याद करके लिख के बजाना पड़ता था। क्योंकि जरा भी अगर हम्म, मिस्टेक होगी, जोर हम्म, से चिल्ला उठते थे, ओए क्या कर रहा है यार तू। ऐसा इसलिए हम लोग एकदम बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट होके परफेक्शन के साथ बजाते थे। ओके। वहां रिटेक और रिटेक का कोई चांस नहीं था। बोलिए। कोई गाना सर ऐसा, मतलब कोई गाना ऐसा शेयर कीजिए कि जो जिसमें जब रिकॉर्डिंग हो रहा हो और एकदम सा माहौल है वो एकदम पूरा फनी हो गया हो कि बजाते बजाते। ऐसे तो मतलब लाइव रिकॉर्डिंग में इतने लोग साथ में रहते थे, तो रोज हर हाँ हर दिन कोई ना कोई फनी, कुछ मजाक आके एक दूसरे की छेड़छाड़ को नहीं बता। कुछ एक एक तो हम लोग रोज लाइव हाँ जी। बजाते थे, तो रोज कुछ ना कुछ छेड़खानी होती रहती थी। अच्छा बोलिए। सर, आपका आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वैसे तो मुझे पता है आप एकदम बाखूबी प्ले
लाइव में। ओके, ओके सर। हाँ जो मतलब जितना मुझे पता है कि शायद कहीं ऐसे मतलब जो गाने थे उस पे आप जब बजा रहे थे, एक मुझे याद है सर, हेमंत ब्रिजवासी हाँ जो लिटिल चैंप्स पे कंटेस्टेंट था, हाँ हाँ उस बच्चा। उसके उसने एक गाना गाया था शावरे। उसमें आपने ऐसे लाइव ही, ये- मैं आपको सुन रहा था, हाँ तो हाँ आपने लाइव ही पूरा पेज पेज बना के मतलब उसको क्योंकि हम म्यूजिशियन हैं, हम उसको देख सकते हैं, पब्लिक ये जज नहीं कर सकती है। आपने इतना फटाक से मतलब वो, क्योंकि गाना उसने चेंज किया, तो आई थिंक वो रिकॉर्डेड में भी, वो जो रिकॉर्डिंग हुआ होगा एपिसोड में, उसमें भी हाँ ये ऐसा ही आया होगा कि आप वो मतलब रिकॉर्डेड नहीं, मतलब जो लाइव था वही सेशन में आ गया। उसमें आपने जो पेज बजाया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर, हेड्स ऑफ यू। मुझे अभी भी याद है थैंक वो यू। गाना। सावरे काफी हाँ। सारे ऑक्टोपेट, हाँ सावरे, काफी सारे करेक्ट है। ऑक्टोपेट्स प्लेयर्स है जो अभी आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं सर। सभी जो आपके फैंस है उसके लिए कोई आप टिप्स देंगे ऑक्टोपेट के लिए? देखिए ऑक्टोपैड एक कंपनी ने एक साउंड बना के आपको 8 पैचेस दिए हैं। मेरा ये मानना है कि मैं उसको एक इंस्ट्रूमेंट करके बजाता हूँ। मैंने उसका एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि अगर एक ड्रमर है जो उसका हायट्स यही होगा, उसका किक वही होगा, उसका स्नेयर वही होगा, उसका टॉम्स वही होगा, या तो तबला प्लेयर है उसका राइट में चाटी है तो चाटी राइट में ही होगी और लेफ्ट में बाया होगा। वैसे मैंने एक डिजाइन अपने आप के लिए बनाया हुआ है कि सर्टन वही वही जगह पे मेरा वो चीज आने वाला है। अगर मेरा डफ और मटका एक तरफ आ रहा है तो हमेशा उस वहीं पे आएगा, क्योंकि मैं एक इंस्ट्रूमेंट करके उसको बजाता हूँ। या तो ऐसा नहीं कि एक बार मैंने राइट से डफ बजा लिया, एक बार लेफ्ट से बजा लिया, ऐसा नहीं है। अगर लेफ्ट से बजा अगर लिया। कोई तबला, हाँ तो तबला, अगर कोई तबला प्लेयर है तो एक पैटर्न मुझे लेफ्ट से अच्छा पड़ता है, इसलिए एक आध बार लेफ्ट से बजा लिया। कहीं कभी राइट से अच्छा बजता है तो राइट से बजा लिया, ऐसा नहीं। वो तो मैंने ऑक्टोपैड में वो अपना एक हिसाब बना के रखा हुआ बहुत बढ़िया है सर। है। हाँ बेसिकली मैं भी खुद ऑक्टोपेड प्ले करता हूँ, तो जितनी सोच मतलब मुझ में है कि ऑक्टोपेड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो जितने भी लाइव लाइव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सपोज के तबला है तो तबला, जो तबला की, तो तुम्बा का नॉलेज होना चाहिए। इसके ऊपर परक्यूशंस जो बोलते हैं कि परक्यूशंस है, तो वो पूरा परक्यूशंस का नॉलेज होना चाहिए कि भाई ट्रायंगल है, मंजीरा है, खंजरी है, घुघरू है, वो सभी ये दम पे है, खाली पे है, ये पूरी नॉलेज हो तभी। हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका हेलो। हर इंस्ट्रूमेंट का हाँ, नॉलेज होना। हाँ धर्मेश भाई, हर इंस्ट्रूमेंट का प्लेइंग का हाँ जी, सही और है सर। उसका प्लेइंग का साउंड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भले अपने पास साउंड्स अवेलेबल है लेकिन उसको बजाने का तरीका अगर पता नहीं है, किसको कितना ओपन रखना है, कितना क्लोज रखना है, किसमें थोड़ा सा रिवर्ब देना है, या तो किसका कंपैरेटिवली वॉल्यूम कितना रखना है, ये सब नॉलेज होना या खुद को उतना सेंस होना बहुत जरूरी है। तभी आप लोग दूसरे से हाँ मैच जी, करके अच्छा साउंड क्रिएट कर सकते हो। हाँ जी सर। पूरी जो सारेगामा वाली जो आपका पूरा मतलब बैंड है, गिरीश विश्वा जी, काफी सारे हाँ ग्रेट म्यूजिशियंस है साथ में, तो उसका हाँ एक मैचिंग आउटपुट इतना बढ़िया आता है कि सपोज के कोई बिल्कुल गाना है बिल्कुल। उसमें ड्रम बजता है, तो आपका मतलब जो पार्ट है वो बेखूबी जो मतलब जो बाहर आता है वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि कोई सुने तो ऐसा ही लगता है थैंक कि यू मतलब थैंक यू। पूरा रिकॉर्ड रिकॉर्ड होके बज रहा है। क्या बात है सर। हाँ सभी आर्टिस्टों, सभी म्यूजिशियंस के लिए सैल्यूट है हमारी।
सर आप जो हमारे दोस्त अभी लाइव आपको देख रहे हैं वो सभी ने मतलब इतनी मुझसे धर्मेश फरमाइश की भाई थी कि अनूप इसके लिए दादा आ मैं, रहे हैं। हम्म, धर्मेश भाई एक मैं बात बताना हाँ जी चाहता सर। हूँ। आपने अभी हम्म, अभी आपने जैसे बोला ना कि हम लोग स्टूडियो में बजाते थे लाइव, मतलब विदाउट रिटेक, विदाउट, अगर मिस्टेक भी हो हम्म, गया तो वैसे ही चलना है, कंपटीशन रहता है तभी तो। हम लोग का बैंड का आपने इतना तारीफ किया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कई बार देखो नए लोग, बच्चे या यंगस्टर्स, उन लोग को भी ऐसा इम्प्रेशन हो गया था कि ये दादा लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं, मिस्टेक भी हो गया तो सुधार के उसको बाद में प्ले करते हैं। इसके लिए हमारे शूटिंग के टाइम पे नए नए बच्चे या जिन लोग को डाउट था, वो आके क्राउड में, हम्म, पब्लिक में बैठते थे जज करने के लिए, देखने के हम्म। लिए कि वाकई में ये लोग सही में लाइव बजा रहे हैं या रिकॉर्डेड प्ले करके ऊपर से हाथ बजा रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने मान बहुत लिया, बड़ी दादा बात है सर। नमस्कार आपको। हाँ, वैसे क्योंकि वैसे सभी लोग रियल मतलब रियलिटी शो में रिटेक नहीं होता है। मिस्टेक अगर हुआ तो वैसे ही हम्म, आपको आगे चलते रहना है, वैसे ही आपका टेलीकास्ट होगा। आपका आपने अगर मिस्टेक किया तो गया वो ऐसे ही छपेगा। और ये बात तो है कि अगर छप गया और वो अगर गलत तरीके से बच गया या कुछ डिस्कॉर्ड हो गया, कुछ बीट मिस हो गया, तो आजकल यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पे सालों साल वैसे ही बचते रहेगा जो आपने मिस्टेक करके छोड़ी है। इसलिए बहुत अलर्ट होके हम लोग को बजाना पड़ता है। सही में सर आपने मतलब काफी सारे गाने हैं उसमें मुझे पता है रिकॉर्डिंग्स में जब आपने सेशंस की स्टार्ट हुई तभी तभी आपने सभी दोस्तों को बोला कि तुम्बा आपने बहुत सारे गाने में बजाया है। तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इफ कैन पॉसिबल कि 5-10 मिनट आपको जो मतलब अच्छा लगे आप पूरे उसको कुछ सुनाइए। अच्छा, ओके। बहुत हाँ सारे जी। मेरे मेरे पहचान वाले ज्वाइन हुए हैं। रामकृष्ण, हेमांगनी झवेरी है, राज शर्मा जी है, अविनाश गांगुडे है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। धीरेन्द्र रावल है। एक मिनट सुनाता हूँ, एक मिनट में। धर्मेंद्र भाई, क्या बात है दादा बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। अच्छा मैंने कुछ कुछ होता के गाना है ना, मुझको क्या हुआ है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है नितिन दा। अच्छा, वो कुछ कुछ होता में एक गाना था ना, मुझको क्या हुआ मुझ है। क्या हुआ है। यस हाँ, यस। वो
बजाया है उसका। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा मैं झलक में बताता हूँ कि एक्चुअल मैंने कैसे हाँ बजाया जी, है। तो कई लोग बताए ठीक है। बजाते हैं, स्टेज पे बजाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर वो लोग कुछ अलग, या हाँ जी, गलत नहीं बोल सकता, अलग बजाते हैं। मैं एक्चुअल कैसे बजाया मैं बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी दादा, क्या बात है। ओह, क्या बात है सर जी। इसमें म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित जी थे ना शायद। हाँ हाँ, जतिन ललित जी। हाँ, रिदम अरेंजमेंट जतिन किसका ललित था जी, सर हाँ। इसमें? ओके, रिदम अरेंजमेंट। रिदम अरेंजमेंट, रिदम अरेंजमेंट हाँ जी, कुछ कुछ होता है, नितिन 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 भाई ने किया था। क्योंकि मैं इसलिए, क्योंकि नितिन नितिन दा की जो मतलब एक पैटर्न है ना, वो पता चल जाती है एज ए हाँ म्यूजिशियन कि इसमें नितिन शंकर जी हाँ, का ही रिदम अरेंजमेंट है 100%। बिल्कुल एक बिल्कुल है, नितिन नितिन बिल्कुल। नितिन दादा ने एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया था। अभी ये गाना है वो, दीवानी, दीवानी मैं दीवानी, हाँ हाँ दीवानी हो हाँ हाँ, गई। बहुत बजा है बढ़िया मैंने, अरेंजमेंट की थी। मैंने भी बजा है उसमें, हाँ। आपने काफी उसमें उसमें क्या कम से बजाया था कम सर? मैंने काफी सारे सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए थे। डब बजाया, हाँ जी, हलगी, वो उसमें जो आपको सुनाई देता है, दर्जन गन्ना दर्जन दर्जन गन्ना तर, नहीं, जो टर हो वो मैंने ट्र- बजाया हुआ है। हाँ, हाँ, वो मैंने अच्छा, बजाया हुआ है। वो चंदा है बाकी ना भी वो? लो, हाँ, बाकी भी उसमें काफी इंस्ट्रूमेंट जो लेयरिंग के लिए होती है वो मैंने बजाई है। देवदास, हम दिल दे चुके सनम, ये तो दिल दो रिदम छुके सनम, या अरेंजमेंट। हाँ, ये तो रिदम अरेंजमेंट्स के लिए तो एकदम माइलस्टोन बन गए हैं। माइलस्टोन 100%। हाँ, देवदास और हम दिल दो छुके सनम, क्या बात है, बहुत बहुत बिल्कुल, बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। आ, और एक मैं अपने आप एपिसोड को था लकी, जिसमें कविता धर्मेश भाई, कृष्णमूर्ति जी आए धर, थे सारे गामा में। उस पे हाँ ये गाना आपने बजाया था, मतलब पूरा पेज बना के, हम दिल दे चुके सनम का जो टाइटल टाइटल हाँ सॉन्ग है। हाँ, धर्मेश भी लाइव रिदम सब हम लोग ने, मैं भी उसका पार्ट था। उसमें डोला रे डोला जो गाना है उसमें मैंने बगल बच्चा का सोलो बजाया था। आप कभी सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, फर्स्ट म्यूजिक में है। हम्म। और सर, एक तो बात मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि आपने तो मतलब इतने सारे प्लेबैक सिंगर्स है जिसके साथ आपने काम किया है, हाँ, आपके फेवरेट सिंगर्स में से आप मतलब आपका फेवरेट कौन है? फेवरेट मेरे आशा जी है। आशा जी, मैं इतना लकी हूँ कि आशा जी को मैं बचपन से लाइक करता था। आशा जी, किशोर दा, पंचम दा, मैं, और मेरा सौभाग्य है कि, लगता है नेट नेट मतलब नहीं आ रहा है आपका। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ, मेरे फेवरेट है हाँ ठीक है आशा, सर। आशा जी और किशोर दा। और मेरे यस, क्या बात है। फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है पंचम दा। तो मैं इतना लकी हूँ कि मुझे आशा जी के साथ लाइव लाइव शोज करने का मौका मिला। मैं कम से कम लास्ट 12-14 साल से उनके साथ प्ले करता हूँ। और उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स में भी बजाने का मुझे चांस मिला है।
वो जैसे कि जरा सा झूम लोगे, अरे नारे नारे ना, नर वो गाना भवना। है। हाँ, बाकी काफी गाने हाँ हैं। और पंचम, मैं इतना लकी हूँ कि पंचम दा के साथ भी मुझे काम करने का बहुत मौका मिला। उनके उनके जिंदगी के लास्ट 4-5 जो साल थे, उनके हाँ जी। हर काम में मुझे बुलाया जाता था, बजवाया जाता था। मैं एक किस्सा हाँ बताता जी। हूँ। कुछ ना कहो गाना है ना, हाँ जी सर। वो उसमें मैंने ऑक्टोपैड। हेलो। हाँ जी सर। कुछ ना कहो। हाँ हाँ, उसमें मैंने ऑक्टोपैड बजाया है वो। और उसमें बढ़िया। मेन तो ऑक्टोपैड ही है। हाँ जी। और एक साइड परकशन बस है बस। तो क्या हुआ, मैं उस दिन स्टूडियो में आया लेट, फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग हुआ था। मैं पहुंचा 11 बजे, और 9:30 बजे सब लोग आ गए थे, रिहर्सल कर लिया था उन्होंने। और मैं पहुंचा ग्यारह हम्म। बजे तो हम्म। हड़बड़ी मच गई, अरे कहाँ है, क्या क्या। पंचम दा ने एकदम, कोई बात नहीं, मुझे एक बार गाना सुन लिया। मुझे हम्म। पंचम दा ने मेरे कान में बोला, देख मेरे को सिर्फ इसमें किक और स्नेयर चाहिए। मेरे को वो देसी वाला किक, ढिम टक टक ढिढी टक टक ऐसा नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे एक बताया कि झिम चक झिम चक चक। मैंने बोला ओके, मैं समझ लिया। और ओके। 11 बजे मैं आया था। और इतना इतना सक्सेसफुल गाना, इतना हिट गाना, मतलब विद इन 45 मिनट्स गाना पैकअप था। 11 बज के 45 मिनट्स में गाना सुन के, रिहर्स करके, बैलेंस करके, वो टेक ओके भी हो गया था। क्या बात है सर। ओ ये गाना मतलब इतना इतना हिट हुआ, और ये एकदम मेलोडियस कंपोजिशन इतना हिट हुआ कि आज आज भी हम सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है कि ये गाना कल ही शायद बना है। हाँ बिल्कुल, एकदम एकदम फ्रेश कंपोजिशन एक है। एकदम फ्रेश हाँ कंपोजिशन। और बिल्कुल। सर जी, ये जो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मुझे काफी सारे मतलब मेरे दोस्त है जो प्रोफेशनल प्लेस करते हैं, वो लोग ने हाँ पूछी थी कि आपका जो प्लेइंग है उसमें आप मतलब डिलेस जो होता है ऑक्टोपेड के अंदर, जो डिले काफी सारे प्लेयर्स होते हैं वो डिले यूज करते हैं, हाँ लेकिन हाँ हाँ। आपकी पूरी सोच प्लेइंग की पूरी अलग है। आप दो तीन ऑक्टोपेड्स रखते हैं और साथ में कंसोल, आप मतलब स्नेयर है, टॉम्स है, लाइव जो शोज हम देखते हैं उसमें ये भी रखते हैं, तो उस पे आप थोड़ा मतलब आपके हिसाब का जो प्लेइंग है वो शेयर कीजिए सर। देखो, मैं डिले यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हाँ जी। बिलीव करता हूँ जो कुछ है, जो कुछ ह्यूमन ह्यूमन एबिलिटी से, मतलब मनुष्य के मनुष्य से बच सकता है, उतना बचना चाहिए। अभी मैं हाँ जी। जो डिले बजाते हैं, उनके हम्म। लिए कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उन उन लोग को एक दो दो हम्म। लोगों में पूरा ग्रुप संभालना रहता है, पूरा भर के हम्म। बजाना पड़ता है। तो उनके हिसाब से वो ठीक है। हम्म। कभी कभी मतलब सुनने में वो अच्छा ही हम्म। लगता है। लेकिन हमारे हमारे हम्म। यहाँ क्या, यहाँ ऐसा है, अभी मेरे बैंड में 4 रिदमिस्ट है। तो 4 मेरे पास ओके। हैंड्स है। तो मैं हम लोग डिवाइड करके बजाते हैं, तो एक पूरा साउंड कंप्लीट आ जाता है। अगर यस यस डेफिनेटली सर। हाँ, तो इसलिए डिले बजाने की मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती। और मैं रियल रियल प्लेइंग में विश्वास करता हूँ। अभी कभी कभी करना पड़ता है, जैसे कि आपने वो सावरे बताया था, उसमें उसमें हाँ जी। अगर, हाँ वो उसमें अगर वो क्लैप का डिले नहीं डालेंगे, मैन्युअली बजाएंगे, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। वो साउंड नहीं आता है सही में। हाँ, वो साउंड और वो फील भी नहीं आता है, इसलिए फील भी ऐसे नहीं कुछ आता है। गाने हैं उसमें
वो डिले यूज करना अच्छी बात है, और ओके, ये होना ही जैसे चाहिए। अभी 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 ये एक गाना आया था, जो फिल्म है वीर ज़ारा, उसमें एक मतलब तबला की जो पैटर्न थी वो उस पे पूरे डिले वाली पैटर्न थी। तो मैं गाना याद कर रहा हूँ, वीर ज़ारा का, तेरे तेरे लिए, लिए। तेरे, हाँ जी, हाँ तेरे लिए। हाँ हाँ तो उसका भी पेज मैंने आपका सुना था, इतना बढ़िया सर आपने वो पेज बजाया था। एपिसोड तो मुझे हाँ याद नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं कि जो फील एकदम प्लेइंग की आती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर आ रही थी। और वो सुन के हाँ, उस दिन बिल्कुल। मैं मतलब इतना खुश हो गया था कि जो पूरा ततक 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 ऐसा, मतलब जो उसका बैलेंस आता था हैंड्स फ्री पे। और हाँ साउंड इंजीनियर ने उसको जो पानिंग किया था वो हैंड्स फ्री पे, अगर एपिसोड आज के दिन भी आप लाइव सुनेंगे, मतलब जो रिकॉर्डेड है वो सुनेंगे, तो ऐसा लगता है कि यार क्या, मतलब फैंटास्टिक सर, यू आर लीजेंड हाँ, हंड्रेड हमारे परसेंट हमारे साउंड इंजीनियर है महेश अम्बेकर जी, महेश अम्बेकर जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करते हैं वो वो बहुत बढ़िया मतलब काम करते हैं। हाँ, वो मैं अगर कुछ सुना हूँ तो हार्डली कभी कुछ बोलते हैं कि अरे उसमें चेंज करो, ऐसा करो, ऐसा करो। नहीं तो मैं मुझे जजमेंट है कि कैसा, किसमें क्या रिवर्ब देना है, किसमें क्या डिले देना है, कि कौन सा लेफ्ट राइट होना चाहिए। ये टेक्निकली थोड़ी सी बहुत समझदारी है, हाँ जी, तो वो मैं उनको वैसे हाँ करते जी, करके देता हूँ। तो हाँ जी, तेरे हाँ लिए जी सर। गाना है, वैसे वो उसमें हाँ, ओरिजिनल में थोड़ा सा कुछ अलग है जो मैन्युअली नहीं बज सकता, तो इसलिए मैंने थोड़ा उसको हम्म, कन्वर्ट करके अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल हो और सुनने में भी अच्छा लगे, ऐसा पैच और ऐसा हम्म, डिले डाल के मैंने वो पैटर्न क्रिएट हम्म, किया था जो अच्छा, उसके साथ बिल्कुल ओके। मैच करता और है। बहुत बहुत बढ़िया बजाया था। और एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 35-38 ईयर्स आपको हो गए है इंडस्ट्री में, मतलब एक म्यूजिशियंस की ऐसी लाइफ होती है कि जो ऑलवेज, हम लोग क्या है बैक स्टेज पे काम करते हैं। पूरी दुनिया है वो मतलब सिंगर्स है, एंकर्स है, उसको पहचानती है। म्यूजिशियंस है, हाँ उसकी एक पहचान तो 100% होनी ही चाहिए। और हाँ ये मेरी एक पहल है, सभी मतलब जो फेसबुक पे अभी लाइव देख रहे हैं, मेरे दोस्त है, आपके जो दोस्त है, तो मेरी ये एक पहल है। शायद ये शोराज गुजरात पे तो किसी ने नहीं किया। मैं ऐसा चाहता हूँ सर कि मैं मेरी फेसबुक वॉल पे सभी लीजेंड म्यूजिशियन को ले आऊँ, क्योंकि दुनिया को भी पता चले कि भाई म्यूजिक इंडस्ट्रीज में जो म्यूजिशियन होते हैं उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर म्यूजिशियंस ही नहीं रहे तो मतलब सिंगर्स क्या करेंगे, सही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिशियन गाने में या लाइव शो में या रिकॉर्डिंग में म्यूजिशियन का पार्ट उतना ही है जैसे जितना सिंगर का है। सब म्यूजिशियंस मिलके गाने को अच्छी तरह से डेकोरेट करते हैं, अच्छा अच्छा साउंड देते हैं, अच्छा फील देते हैं, सिंगर को बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट करते हैं, ताकि सिंगर बिल्कुल हम्म, खुल के अपने फीलिंग के साथ गा सके। हम्म, 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 सिंगर सिंगर के बेसिकली लिए सर मैं, म्यूजिशियन का हाँ, अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे आप तो सब सभी प्लेबैक सिंगर्स के साथ लाइव शो में भी काम करते हैं। मैंने आपको एक बार हम मिले थे सर, आपको याद है, राजकोट एयरपोर्ट पे आप और गिरीश विश्वा जी। मैं मुझे सुबह 4 यहाँ हाँ, मतलब सुबह की 5 बजे वाली फ्लाइट पे मिले थे। शायद जावेद अली का शो था, हाँ, उसमें आप आए थे। तो करेक्ट करेक्ट, हाँ। आप, हाँ जी, तो जो मतलब जो लाइव एक सिंगर्स होते हैं उसमें जो एक परफॉर्मर होता है उसकी भी एक अलग पहचान होती है। वैसे म्यूजिशियन में भी यही बात है कि म्यूजिशियन एक आदमी है वो बजाता है, बहुत बढ़िया बजाता है, और एक आदमी क्या होता है वो परफॉर्मर होता है। तो उस पे आप बिल्कुल। की मतलब किस पे चॉइस रहेगी आपकी नहीं नहीं, देखो अभी कि म्यूजिशियन को परफॉर्म? परफॉर्म मैं परफॉर्मर को कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। वो करते हैं अपना, उनके अंदर वो, मेरा मानना है कि वो खुद अपना म्यूजिक अपने अंदर से एंजॉय करते हैं, इसलिए वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। समझे मेरी बात?
अगर मैं हाँ जी, अपना बजाया हुआ खुद का म्यूजिक अगर एंजॉय नहीं करूंगा तो वो मेरे फेस पे कैसे आएगा? अगर मैं नहीं एंजॉय हाँ करूंगा जी। तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि अगर मैं बहुत ठीक डिफिकल्ट है। मैं बहुत अच्छी बहुत डिफिकल्ट चीज बजा रहा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे हाँ पे जी, अगर कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम जीरो एक्सप्रेशन देके अगर मैं कर रहा हूँ, तो सामने वालों को भी लगेगा कि ये क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। इसलिए जब हम प्ले करते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तभी हाँ जी। सामने वाले को भी पता चलेगा कि अरे हाँ भाई, ये अगर एंजॉय कर रहा है, खुद एंजॉय कर रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ हो रहा है, कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। सही है, ऐसा सही है मेरा सर, मानना सही है। है। इसलिए परफॉर्मेंस के सर जी, मैं लिए आप डन जी सर, आप आपके मतलब जो आप ये फील्ड में आए तो आपके गुरु कौन से हैं? मतलब आप किसको गुरु मानते हैं अपना? मेरे दो गुरु हैं। हाँ नितिन जी। शंकर जो मेरे भाई है, ब्रदर ही है मेरे। भाई है। और हाँ जी। तौफिक तौफिक भाई है, तौफिक भाई, तौफिक कुरैशी। उनसे भी हाँ जी। मैंने सीखा है। मेरा एक फ्रेंड था हसमुख करके, जो ओके। अभी गुजर गया, उसने मेरे को बेसिकली ढोलक भी सिखाई थी। तो मैं अच्छा। पहले कॉन्गो ढोलक बजाता था। मैंने हाँ रिकॉर्डिंग जी। में भी काफी बजाया है, रिकॉर्डिंग ढोलक बजाया, लाइव शोज में भी बजाया। हम्म। मैंने ओपन एयर साहब के लिए भी रिकॉर्डिंग में ढोलक बजाई है। तो हाँ, सर तो और मुझे, ये जो मतलब हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए सर। हाँ, और मेरे शुरुआत के करियर में मुझे मेरे अरेंजर, मेरे बॉस बोलो, श्री अमर अमर हल्दीपुरकर जी है। आपने नाम सुना होगा या से मालूम है। बहुत बड़े अरेंजर और बहुत बहुत गुणी कलाकार है, जिन्होंने दर्द दिल, दर्द जिगर का दर्द वायलिन जिगर। बजाया। वो एक मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। फिर आनंद मिलिंद के पास श्री उदय कुमार दुबे जी थे। उन्होंने मेरे करियर को पुश करने के लिए काफी हेल्प की है। मैं ओके। ऑलवेज उनका थैंकफुल रहूंगा। बहुत बढ़िया बात है सर। तो ये आप मतलब जब ढोलक का और तुम्बा कोंगोस बजाते थे तो उस टाइम पे शायद आई थिंक सो ऑक्टोपेड का जन्म नहीं हुआ होगा, तो ये इंस्पिरेशन आपको ऑक्टोपेड बजाने का कहाँ से मिला? एक्चुअली ये कहानी ऐसी है कि जब 93 में ये हुआ, अंताक्षरी का पहला शूट है, कॉन्गो ढोलक बजा हाँ जी। रहा था। और हाँ जी। दो ही रिदम थे। मैं कॉन्गो ढोलक बजा रहा हाँ था, जी। और साथ में एक मेरा फ्रेंड ऑक्टोपैड बजा रहा था। तो उस टाइम उसके लिए भी वो ऑक्टोपैड नया नया था। तो थोड़ा कुछ मतलब मेरे जो उस टाइम के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला यार ये तो कुछ थोड़ा जम नहीं रहा है, कुछ हम्म। कुछ चेंज करते हैं। तो मैं तब हम्म। तब थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग्स में या शोज में ऑक्टोपैड बजाता था। तो मैंने हम्म। हम्म। वो टीवी शो में ऑक्टोपैड पे मैंने अपने को शिफ्ट कर लिया। और हम्म। फिर गिरीश हमारे साथ ज्वाइन हुए कॉन्गो ढोलक पे। फिर वो वहां से हमारी जोड़ी एकदम जम गई, और रिदम रिदम हम दोनों का मिलके इतना अच्छा आता है। कॉम्बिनेशन बढ़िया है सर आपका। हाँ, अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। टीवी इंडस्ट्री के जितने भी साउंड इंजीनियर्स है, जैसे कि महेश अम्बरकर जी है, अश्विन है, अश्विन हाँ। बलसारा, हम्म। सुनील है काफी है, हाँ जी। संजय राणे है। उन्होंने उन्होंने मिलके मेरे को और गिरीश को एक नाम नाम दिया है कि मॉन्स्टर रिदम्स। मतलब हम उनका कहना है कि हम दोनों जब बजाते हैं तो तीसरे चौथे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये हमारे लिए सर एक बधाई है, शुभकामनाएं है बहुत हमारे बड़ी लिए। बात है हाँ, और उनको सर। थैंक एक यू। एपिसोड आया था एक एपिसोड आया था सारेगामा का, जिसमें मतलब गेस्ट में सलमान खान जी आए थे
हमारे सुपरस्टार सलमान खान। तो हाँ उसने, मुझे ये एपिसोड याद है, हाँ उसने एक मतलब खड़े होके ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, अरे अनूप गिरीश क्या बात है, इस फिनो, मतलब कुछ ऐसा वर्ड बोला था, अभी तो मुझे याद नहीं है, कि आप दोनों को मतलब ऐसे फेमिलियर उसने बुलाया कि भाई ये दोनों है, अरे खत्म हो गया बैंड का बात पूरा। सही है ना सर, मुझे याद है सर हाँ आज भी वो एपिसोड। हाँ। वो हम लोग ने सलमान भाई के साथ में 90s में, मतलब 92 से लेके 2002 तक काफी सारे लाइव शोज किए, यूएसए, कनाडा, दुबई, सिंगापुर। हम लोग काफी सारे शोज में, मतलब 45 डेज का ये रहता था, एक टूर, कम से कम टूर सोलह टूर सत्रह रहता शोज। था। हाँ, टूर रहता हाँ था, जी। 16-17 शोज होते थे। तो एवरी शो में तो मिलते थे। शो के पहले जो साउंड चेक यानी ये वो रहता है, उसमें भी हम लोग फिर बैठ के टाइम पास करते थे। और शो के बाद में जो धमाल मस्ती होती थी, वो भी सब उनको उसको उनको याद है, सलमान भाई को। और एयरपोर्ट पे दूसरे दिन सवेरे फ्लाइट पकड़ने के लिए एक ही फ्लाइट में जाते थे, तो एयरपोर्ट में बैठ के हम्म। बातें करना, टाइम पास करना, मजाक मस्ती करना, ये सब होता था। तो वो ये सब। अभी इतना इतना कम से कम 10 टूर किए होंगे साथ में, तभी उनको सलमान भाई को याद है कि अरे ये लोग तो है अपने साथ। इसलिए उस दिन उन्होंने बिल्कुल सही है, मेंशन सही है। किया। हाँ, और वो मतलब पहले से जब से आते थे सारेगामा वगैरह वगैरह, तो मतलब ऑफ द माइक, ऑफ द कैमरा बहुत अप्रिसिएशन करते थे। इस बार तो उन्होंने मतलब बोल ही दिया, अरे नाम याद करके बोल दिया कि अनूप गिरीश, और कितना हम लोग का एसोसिएशन था साथ में। उनके लिए थैंक यू उनको। अरे 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 दादा। और ये जो अभी मतलब कोविड-19 कोरोना की जो महामारी है, जो पूरे वर्ल्ड में जिसने मतलब सभी लोगों को पूरे पूरा वर्ल्ड तहस नहस कर दिया है जिसको बोले तो बिल्कुल सर, जो हमारे म्यूजिशियंस भाई है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम सभी है, सभी को ये चिंता है कि हमारा इंडस्ट्री वापस कब स्टार्ट होगा, कब शुरू होगा, क्योंकि शायद एक साल तक तो मतलब कोई म्यूजिशियंस है, कोई मतलब आर्टिस्ट है, वो लोग कोई कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है। लेकिन हम सब मिलके भगवान गॉड अल्लाह सभी को एक प्रार्थना करेंगे, प्रे करेंगे कि ये जो महामारी है उसमें से सभी को मतलब निकाल दे। और एज ए म्यूजिशियन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि सभी म्यूजिशियन भाई है, उसका ये खराब मतलब दिन है, तो फिर वापस एक नया दिन आएगा। जब रात होती है तो उसके बाद सुबह होती है, तो वी विल बिल्कुल वेट। बिल्कुल होती है। तो है ना बिल्कुल होती सर, है हमारे इसमें। जो देखिए, फैंस है। हाँ जी सर, हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो सिचुएशन आई है, जैसे हालत आए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। एक साल तो मुझे नहीं लगता, एक साल अपने को वेट करना पड़ेगा। कुछ कुछ महीनों में आहिस्ता आहिस्ता सब काम चालू हो जाना। क्योंकि अभी से लोग दिसंबर जनवरी के वेडिंग्स के प्लान्स कर रहे हैं, उसके लिए म्यूजिक का भी प्लान्स कर रहे हैं, ऐसा मैंने मेरे सुनने में आ रहा है। कुछ चेंजेस जरूर होंगे, जैसा सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब वो तो अपने को अभी काफी सालों तक सेफ्टी सेफ्टी के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन साल भर की बात नहीं है। एक 4-5 महीने में आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अगर खबरदारी लेंगे, तो अपना काम चालू होने का चांसेस है। ये मेरी सदिच्छा है, और ऊपर वाले से दुआ भी है कि सबका ठीक हो जाए। और लेकिन यहाँ जो हम लोग घर पे बैठे हैं, तो एक काम जरूर करना है कि अपना हाथ और दिमाग रोकना नहीं है। अपना हाथ चालू रखना है, अपना कम से कम जितना हम काम कर सकते हैं उतना तो कम से कम बचा के रखना है। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि
काम नहीं कर रहे तो इंस्ट्रूमेंट निकाल के उसको देखना या उसको बजाना छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज का अपना प्रैक्टिस, या 2 दिन में एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट निकाल के प्रैक्टिस करो, या नए नए लोगों को सुनते रहो, अपने आप को अपग्रेड रखो। सही है बात ये मेरा आपकी सर। विश्वास है। आपने जो हमारे, हाँ जी, आपने जो हमारे म्यूजिशियंस है उसको टिप्स दी। आपने जो मतलब आपकी जो पर्सनल जो म्यूजिक की बातें हैं वो शेयर की, इसलिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। आपने जो आपका जो अमूल्य टाइम है वो हमारे लिए आपने दिया, उसके लिए भी हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। सर वापस फिर मिलेंगे। और सभी मेरे म्यूजिशियंस भाइयों को एक नम्र निवेदन है, विनंती है कि इंडस्ट्री के बहुत बड़े जो हमारे अनूप दा आज हमारे साथ में है, इसकी मुझे पता है क्योंकि हमारे एक खास दोस्त है जयेश भाई, जो आपके भी दोस्त है। वो जय सरैया। घर पे आए थे संगीत उस टाइम। संगीत। यस, जयेश भाई जब घर पे हाँ। आए थे तब जयेश भाई ने बताया था कि आपकी कुछ तब मतलब हेल्थ है वो ठीक नहीं थी। तो आपने इस टाइम पे भी मतलब इतना कोऑपरेशन किया हमारे लिए, उसके लिए सर हार्टली थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच। सबको थैंक यू। और मैं थैंक अपने यू सर, दोस्तों बाय। को ईद मुबारक कहना चाहूंगा। हाँ जी, सभी थैंक यू को ईद वेरी मच। मुबारक जो हमारे। ईद। थैंक यू वेरी मच सर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू धर्मेंद्र भाई, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।